আজি দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছত আজি ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত বিশাল আয়োজন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ কৰিব চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। শপত গ্ৰহণ কৰিব ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু অতুল বৰাই। চৰণ বড়ো আৰু অজন্তা নেওগেও কৰিব শপত গ্ৰহণ। বিধায়ক ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস হ'ব বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নীতিন নবীনকে ধৰি দেশৰ ৭৫গৰাকী বিশিষ্ট অতিথিয়ে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সহ এনডিএ শাসিত প্ৰদেশৰ ২২খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপমুখ্যমন্ত্ৰী। অসমত উপস্থিত হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাড়নৱিছ, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাও কালি আহি উপস্থিত হয়। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই খেমচান সিং, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মিন, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ' উপস্থিত হৈছেহি। অসমত উপস্থিত হৈছেহি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝীও কালি নিশা উপস্থিত হৈছেহি অসমত। লগতে উপস্থিত হৈছে অসমত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেও চাই, উপস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুনেত্ৰা পাৱাৰ, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী, ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে, উপমুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া কুমাৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী লালন সিঙো আহি কালি নিশা উপস্থিত হৈছেহি অসমত। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব জিত আদানী, সজ্জন জিন্দাল, অনিল আম্বানীকে ধৰি দেশৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট উদ্যোগপতিয়ে। তদুপৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি যিহেতু দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এনডিএ তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব, তাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খানাপাৰাত আচলতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈ গৈছে। ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছতেই আজি ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত বিশাল আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ কৰিব চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব, অতুল বৰা, চৰণ বড়ো আৰু অজন্তা নেওগে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে। বিধায়ক ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস হ'ব বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নীতিন নবীনকে ধৰি দেশৰ ৭৫গৰাকী বিশিষ্ট অতিথি। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত কালি নিশা আহি উপস্থিত হৈছেহি প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, এনডিএ শাসিত প্ৰদেশৰ ২২খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰী। অসমত উপস্থিত হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাড়নৱিছ, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাও আহি উপস্থিত হৈছেহি। লগতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই খেমচান সিং, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মিন, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ' উপস্থিত হৈছেহি। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কালিয়েই নিশা উপস্থিত হয়হি অসমত। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝী উপস্থিত হয়হি। ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেও চাই উপস্থিত, মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুনেত্ৰা পাৱাৰ, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীও আহি ইতিমধ্যে অসমত উপস্থিত হৈছেহি। ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে, উপমুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া কুমাৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী লালন সিঙো উপস্থিত হয়হি। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব জিত আদানী, সজ্জন জিন্দাল, অনিল আম্বানীকে ধৰি দেশৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট উদ্যোগপতিয়ে। তদুপৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত। We are very happy. The present Chief Minister has done extremely well. The third time, but he has won. Election by election, majority has increased. It shows the trust of people in him. We are very proud of him. I wish him all the best. He is a good leader. Under his leadership, Assam will develop further for new heights. हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी। और कल गुवाहाटी में असम के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा जी का शपथ ग्रहण समारोह है।
उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से मुख्यमंत्री जी का श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। असम में लगातार यहाँ की जनता तीसरी बार बीजेपी को आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई है और हेमंत बिश्व शर्मा जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल एनडीए सरकार की कल हिमंता बिस्वा शर्मा का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है। एनडीए सरकार को फिर से बहुत अच्छी लोगों ने विश्वास करके फिर से चुना है, विश्वास दिखाया है। इसलिए हम ये आने वाली सरकार जो है मुख्यमंत्री जी को, उनके एनडीए के सहभागी सब पक्ष को और सब जनता को हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत बहुत जनता का विश्वास और मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही बीजेपी की तीसरी बार असम में जीत का कारण है और हर एक व्यक्ति को यह पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा का काम असम को और आगे लेके जाने वाला है, तरक्की के आसमान पे, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा होगी, सम्मान होगा और राज्य तरक्की करेगा। विकसित भारत, विकसित असम। असम में आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी ने पूरे देश में सनातन संस्कृति का झंडा बुलंद करने का काम किया है और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में बनी है। मैं आसाम वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। कल का दिन आसाम वासियों के लिए खुशी का दिन है। कल हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हमारे मित्र हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए कल हैट्रिक कर रही है, इसकी खुशी है हमें। और मैं कल होने वाले फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये आसाम वासियों को जीत है, ये विकास की जीत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास, ये जो विजन है, ये विजन की जीत है। और जो हमारे देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का जिन्होंने संकल्प किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, इनकी दूरदृष्टि, उनका जो नियोजन है, मैनेजमेंट है, और उसी के साथ हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, इनका एक डायनामिक जो लीडरशिप है, विजनरी लीडरशिप है, इसकी जीत है। या उन्होंने पिछले अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, यहाँ हर वर्ग को, महिलाएं हैं, युवा है, यहाँ के सभी वर्ग के लिए जो काम किया है डेवलपमेंट का, ये डेवलपमेंट और डायनामिक विजनरी लीडर के रूप में उन्होंने जो काम किया है, इसकी जीत है। और मैं आसाम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर जिताया है। एक बहुत ही बड़ा मैंडेट, 120 सीटों में से 102 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ये बहुत बड़ी जीत है और निश्चित रूप से हमारा महाराष्ट्र और आसाम का एक बहुत पुराना रिश्ता है। 2022 में हम लोग यहाँ पर जब आए थे, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद हमें तभी मिला था और यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री
हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, बहुत उनकी पूरी टीम ने हमको काफ़ी जो सहयोग दिया। वो जो रिलेशन है, हमारा रिश्ता है, वो बहुत पुराना रिश्ता और बहुत अभी इस चुनाव की वजह से और मजबूत हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिन में यहाँ का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, माता बहनों के लिए कई योजनाएं यहाँ होगी, किसानों के लिए योजनाएं, यह पूरा एजेंडा जो है डेवलपमेंट का एजेंडा है। और इसी के वजह से यहाँ के लोगों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया है। यहाँ पर प्रचंड आसाम में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है हेमंत शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की सरकार यहाँ पर पिछले 5 सालों तक काम हुआ, इससे पहले काम हुआ। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर बड़ा बहुमत आसाम की जनता ने दिया। असम में तीसरी बार डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। मैं हिमंता जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। असम में 10 सालों से जो काम हिमंता जी ने किया है, असम में विकास है, समृद्धि है और शांति है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, इन्हीं प्रयासों को लेकर के आगे बढ़ेगी और असम तेजी से विकास करेगा। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और असम में डॉक्टर हिमंता जी की सरकार, हम मिलकर के काम करेंगे। बिल्कुल, माँ कामाख्या की भूमि असम में पहली बार आने का मुझे अवसर मिला और कल ओथ सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह है। मैं हमारे के मुख्यमंत्री जी को, हेमंता जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनका इतना अच्छा कार्यकाल है। और एक बात और कहना चाहूँगी, पहली बार मैंने इतना सुंदर एयरपोर्ट देखा है। मैंने विश्व के बहुत सारे एयरपोर्ट्स देखे हैं पर इतना सुंदर एयरपोर्ट नहीं देखा। तो मैं उनको कहना चाहूँगी, जब एयरपोर्ट इतना सुंदर है तो कितना विकास का काम उन्होंने किया होगा। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से और हेमंता जी की मेहनत से असम बहुत आगे बढ़ रहा है, विकसित असम की ओर। कल हमारे तीसरी बार शपथ लेंगे हेमंत बिस्वा जी। मैं पूरी आसाम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भारी बहुमत से हेमंत बिस्वा जी की सरकार को यहाँ विजय बनाए और अच्छी सरकार जो शपथ लेने के बाद उन्होंने जो 2 बार पहले भी एक अच्छी सरकार इस आसाम में देने का काम किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी विकसित भारत 2047 जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो सोच है, उस सोच को माननीय बिस्वा जी आगे बढ़ाएंगे। The chief minister is close friend of mine, so I have to be here, and he invited me personally. That's why I come. The architect of this victory is none other than the world's most popular leader, Prime Minister Narendra Modi, who has visited Assam and the Northeast 80 times, which is something like 10 times more than his predecessor. The double-engine Sarkar here, led by a very dynamic Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma, has transformed Assam. And to make this victory possible, the kind of monitoring that our modern-day master strategist, Home Minister Amit Shah ji had provided, our party president of the world's largest party in history, Nitin Navin ji has provided, has made this victory possible. I was very thrilled to play my part in it, along with lakhs of BJP and NDA karyakartas throughout Assam who have really slogged day and night to make this happen. আজি আমি সকলোৱে এটি কথা সকলোৱে আন্তৰিকতাৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত আমাক আন্তৰিকতাই সহায় কৰিলে আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগৰ বাবে আমাৰ অহাকালিলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ কেইবাগৰাকীও শপত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু মই এই সুযোগতে অসমৰ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी। और कल गुवाहाटी में असम के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से मुख्यमंत्री जी का, श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। असम में लगातार यहाँ की जनता तीसरी बार बीजेपी को आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई है और हिमंत बिस्वा शर्मा जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल एनडीए सरकार की कल हिमंता बिस्वा शर्मा का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है। एनडीए सरकार को फिर से बहुत अच्छी लोगों ने विश्वास करके फिर से चुना है, विश्वास दिखाया है। इसलिए हम ये आने वाली सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी को, उनके एनडीए के सहभागी सब पक्ष को और सब जनता को हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।